Okay, well, good evening, everybody. In sequence of the audio lesson, I had given you one audio lesson where I had described the meaning of federalism. I had already told you in that audio lesson that somehow it is be better if the book is kept in front of us and just we pay attention to the line by line reading of the chapter, then you will feel more connected to the teaching learning process. And it is good to provide first video lesson of the chapter, and in it I will provide you the thorough descriptions of the chapter topic wise. Each concept will be described in simple sentences in elaborated manners, so you will not find it difficult to understand it. Nevertheless, let me once again recapitulate it that in democratic politics, as the name of the books suggests itself, we will study more relevant concepts related to the democracy. And in the second chapter, we had started the chapter federalism. So first of all, you should have the clear-cut meaning of the federalism. The term federalism means Sanghavad. Sangh means union. Union of or group of something is called union. So here we will study that what sort of governments are prevailing in a country, in a given sovereign state, and is there such a scenario that the governments are working at central level as well as state levels. If you take example of the country India, you will find that India is such a country where the governments are working at two levels. First, there is a central government which is responsible to make frame laws which are of due importance to the interest of the country as a whole, and it includes issues like foreign relations, defense, banking sectors. There are several central government departments in India. You might be listening in news and newspaper. You might be seeing these things. So you definitely finding it easy to understand that there are central governments in one hand, and there are separate state governments for different states. So federalism talks about a system of government in a country which works at two levels, and these governments have their independent jurisdiction of governing the people. They have separate corners to collect the revenues from the citizens of the country, and they have separate legislation formation body. For central government, we generally choose MPs, member of parliament, and the formation of state governments, we generally choose MLA, member of legislative assembly. These are the people's representatives. Once they are chosen, they go to the in parliament, or if it is case of the legislative assembly in the state, they will go to the legislative assembly, and the party which have majority of numbers of members in the parliament or legislative assembly, that party will be entitled to form the governments. So these things we have already studied into the class 9 chapters, electoral politics chapter. So I am just telling you that federalism is a system of government in which the power is divided between a central
authority and various constituent units of the country. So let me once again read it. There is a cartoon and one boy is sitting here and the boy is pondering, thinking that I am confused. What do we call the Indian government? Is it union, federal or central? तो जो लड़का है जो पिक्चर में बैठा हुआ बच्चा बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा पजल लग रहा है। ये लड़का सोच रहा है कि ये लोग कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब क्या है? एक ही चीज़ है कि कुछ अलग है? कहीं सुनते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैंक का रूल सेंट्रल बनाती है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है आती है। तो ये सब चीज़ हम लोग हम प्रतिदिन सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं। तो हमारा ये मतलब एक टेंडेंसी होना चाहिए, जानना चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ये किस तरह से काम करता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये किस तरह से काम करता है, और दोनों के क्या क्या पावर्स होते हैं, और दोनों के बीच में फिर क्या कोहेसिवनेस होती है, क्या उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो दोनों अपने अपने हिसाब से डील करते हैं, उस पर कानून बनाने का उन्हीं को पावर है। सेंट्रल इश्यूज़ पर सेंट्रल लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो अगर एक ऐसा कंट्री हो वर्ल्ड में जहाँ पर इस तरह की दो लेवल की गवर्नमेंट्स काम करती हो, तो उसी को कहते हैं फेडरलिज्म। मतलब पूरे देश पर शासन किसी एक बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, किसी एक संस्था के अंदर नहीं रहेगा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। एक सेंट्रल लेवल पर पावर रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी, और एक स्टेट लेवल पर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करेगी। तो इस तरह की गवर्नमेंट की जो सिस्टम किसी भी देश में होती है, तो कहते हैं वहाँ फेडरल गवर्नमेंट से, वहाँ फेडरलिज्म है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में slowly we will start it. So here it is written, let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we studied in the last chapter. So you might be recalling, and if you have written the notes of the last chapter, you might be knowing that in last chapter we have taken example of the two nations. First one is Belgium, a European nation having its capital at Brussels, and second is Sri Lanka. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज पावर शेयरिंग। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था, मतलब नोट्स लिखा था, उसके बारे में हमने वीडियो नहीं दिया है, तो उसके बारे में मैं वीडियो दे दूंगा। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी कहने का मतलब ये हुआ कि सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए दो देशों का एग्जाम्पल लिया गया, और वहाँ दिखाया गया कि किस तरह से बेल्जियम में डिफरेंट कम्युनिटीज़, डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे। तो किस तरह से उस देश में ये तीनों कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर आपस में एक इस तरह की गवर्नमेंट की रचना की, एक तरह की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, जिससे उस देश के अंदर के लोगों के बीच में डेमोक्रेसी बहुत सक्सेसफुल रही। और एक दूसरे तरफ श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ श्रीलंका में जो लोग मतलब सिंहली लोग मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया, अपना ही वर्चस्व लागू करना चाहा, और धीरे धीरे श्रीलंका गृहयुद्ध में उलझ गया और बहुत सारे जान माल की क्षति हुई। तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? पावर शेयरिंग का ज़रूरत विद इन द गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर भी जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और एक फोर्थ बॉडी की भी बात होती है जिसे हम लोग आजकल प्रेस कहते हैं, मीडिया कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव है, वो कानून बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव है, उसको लागू करता है, एंड जुडिशरी है, वो देखता है कि संविधान के अनुसार कानून बन रहे हैं कि नहीं, और अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, तो चाहे वो स्टेट अन्याय कर रहा हो या कोई समाज में अन्याय हो रहा हो, तो उसके लिए न्याय दिलाने का काम जुडिशरी करती है। तो ये तीन पार्ट के मिलाकर ही गवर्नमेंट चलती है। तो ये गवर्नमेंट के अंदर एक पावर शेयरिंग होता है, और दूसरा देश के अंदर होता है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और एक लोकल लेवल पे, जिसे हम लोग म्यूनसिपैलिटी कहते हैं शहरों के लिए, और गांव के लिए ग्राम पंचायत कहते हैं। तो इंडिया में मतलब पावर शेयरिंग जो है ये 3 लेवल पर, जिसको कि वर्टिकल डिवीज़न कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग है, जिसमें पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पर होती है, और वर्टिकल डिवीज़न पावर जो होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में बटा होता है। तो
उसमें बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में मतलब डच स्पीकिंग पीपल जो थे पूरे देश में वो 59% थे, मेजॉरिटी में थे। और उसके बाद थोड़ा सा उस चैप्टर का हम लोग देख भी लेते हैं पिक्चर, तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि मतलब ये देख सकते हैं एक बेल्जियम कंट्री है, इसमें बताया गया है कि 59% जो पॉपुलेशन है पूरे कंट्री का वो फ्लेमिश रीजन में रहता था और डच लैंग्वेज बोलता था। 40% जो पीपल थे वो लोग वैलिनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे, और 1% पीपल जो थे वो जर्मन बोलते थे। तो देश में मेजोरिटी किसकी हुई? डच स्पीकिंग पीपल की। लैंग्वेज डिफरेंसेस था यहाँ पर। लैंग्वेज के हिसाब से देश एक जैसा नहीं था, लैंग्वेज के हिसाब से 3 ग्रुप थे यहाँ पर। उसी तरह से अगर राजधानी ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में क्या था कि वहाँ पर 80% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग थे वो डच बोलते थे। अब ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोगों का मेजोरिटी थी और डच स्पीकिंग यहाँ पर माइनॉरिटी में थे, लेकिन एज ए होल कंट्री की बात करें तो वहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में 59% थे। अब ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में तो नहीं थी, लेकिन इकोनॉमिकली और सोशली ये लोग कंपैरेटिवली डच स्पीकिंग पीपल से ज़्यादा रिच थे, पावरफुल थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में टेंशन बढ़ता गया। अब कोई दूसरी कम्युनिटी ज़्यादा तरक्की करेगी, ज़्यादा आगे बढ़ेगी और वो भी संख्या में कम हो तो दूसरे कम्युनिटी को इससे अवचलन तो होती है। टेंशन बढ़ने लगा। 1950s और 60s में ये टेंशन बहुत बढ़ गया। तब वहाँ पर इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ के लोगों ने एक वहाँ पर पावर शेयरिंग का कंसेप्ट लाया, और पावर शेयरिंग कंसेप्ट करके वहाँ पर निर्धारित हुआ कि किस तरह से सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनेगी तो दोनों कम्युनिटी के इक्वल मतलब मिनिस्टर रहेंगे, और ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पर भी इक्वली रहेंगे। मतलब कोई मेजॉरिटी में है तो उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और मतलब ब्रुसेल्स में एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी बनी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि कल्चर का और एजुकेशन का मैटर देखती थी, और उसमें हर कम्युनिटी के लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे। तो इस तरह से बेल्जियम के लोगों ने देश को में मतलब एक तरह से कहें कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से मतलब उनके बीच में टसल्स होने से, टेंशन होने से रोक लिया। और ये क्यों रुका? क्योंकि लोगों ने आपस में पावर शेयरिंग किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पावर को स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए गए धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और ये धीरे धीरे इससे फ़ायदा ये हुआ कि ब्रुसेल्स एक एग्जाम्पल बना कि किस तरह से एक ऐसा कंट्री जहाँ पर डाइवर्स कल्चर और डाइवर्स लैंग्वेज के लोग रहते हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया। लेकिन वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर 74% जो पॉपुलेशन है वो सिंहला भाषा बोलने वाले लोगों की है, 74% लोग वही हैं। और वहाँ पर दूसरा जो कम्युनिटी है 18% वो है तमिल लोगों का, और तमिल लोगों स्पीकिंग पीपल तमिल भाषा है। तो 74% सिंहला भाषा बोलने वाले लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म के मतावलंबी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और 18% तमिल भाषा बोलने वाले थे, जिसमें से कि 13% तो जो तमिल थे वो वहाँ के लोकल थे और बाकी इंडिया से गए हुए तमिल थे। अब इसके अलावे भी वहाँ मतलब क्रिश्चियन लोग भी रहते थे। तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं फॉलो किया गया। सिंहली लोगों ने 1956 में, चूँकि मेजोरिटी में तो उनकी गवर्नमेंट बनी, उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने एक संविधान में परिवर्तन ला करके सिंहली भाषा को ही राजभाषा बना दिया। नौकरियों में और स्कूल के अध्यापकों और नौकरियों में और बहुत जगहों पर सिंहली लोगों को फेवर करने के लिए कानून बनने लगे। धीरे धीरे तमिल लोगों को लगा कि उनकी अनदेखी की जा रही है, उनको ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो फिर उन्होंने इसके लिए डिमांड किया और धीरे धीरे ये डिमांड को सिंहली लोगों ने दबा दिया क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, और अंततः गृहयुद्ध हो गया वहाँ पर और देश में काफ़ी क्षति हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग 2 अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से हुआ। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया तो वहाँ डेमोक्रेसी सफल रहा, और सिंहली लोगों ने मेजॉरिटी को फॉलो किया, बहुसंख्यकवाद को फॉलो किया, तो वो गृहयुद्ध में लच गया। तो ठीक है, देखते हैं फिर